Myself, Preeti Sogani. I am born up and brought up in Mumbai. स्कूलिंग कॉलेज सब मैंने मुंबई से किया और बहुत ही अर्ली एज में आई वॉज मैरिड और जयपुर मेरी शादी हुई विद मिस्टर दीपेन सुगानी. आई स्टेड इन जयपुर फॉर 5 years एंड देन वी शिफ्टेड टू उदयपुर. प्रोफेशन के हिसाब से हमें उदयपुर शिफ्ट होना पड़ा. And I have a small baby of 7-year-old boy, and my mother-in-law, she is old aged 80 plus, and we all four together are staying presently in Udaipur. I'm the present one of the director of the International School Udaipur, and it's a senior secondary school which we started at around 2002 when we shifted to Udaipur. It's a brainchild of my brother. Viti is a brand of my brother, Dr. Vinay Jain. My bhabhi and my brother both look into this school sections, and it's no doubt a chain of schools, and we have approx 10 schools running at present. And Udaipur, we have started in 2002 with a small pre-primary school in the name of Viti Kids. It was in Sardarpura. And slowly and steadily in 2008 we took the land. It took lots of efforts. UIT के बहुत चक्कर काटे, searching the lands and all. But by grace of God, we were able to purchase that land. And in 2009 the school was ready. And by grace of God, right now it's a senior secondary school with all streams. And in Udaipur, I think we have, with our hard efforts, with our long vision, we have achieved some mark, and our parents and kids are very, we are grateful to them. We are blessed to have such parents, and they also have faith in us. They are now very much clear that what Viti is, how it is value based, how the system works in Viti. We are trying our level best to give the kids all the weekends the best, infrastructure wise, academic wise, sports wise, value wise. So I think we are doing well in the school industry at present. Life is full of challenges. Daily कोई ना कोई नया मिशन, नया टारगेट, नए क्वेश्चंस अराइज होते ही रहते हैं. And I think positive attitude say, when we are very clear of what we are doing and what's the purpose of doing that, we are able to handle it. Parents की तरफ से भी बहुत क्वेश्चंस चलते हैं स्कूल में, स्टाफ को हैंडल करना रहता है. कोई स्टाफ किसी उससे जिनकी नहीं सेटिंग बैठती है तो they come up with their questions, parents come up with their questions, when we need to guide them, we need to counsel them. So challenges आपकी लाइफ में आएंगे और आते रहेंगे. वी जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव एंड टू हैंडल इट इन अ पॉजिटिव वे. सक्सेस मंत्रा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज वी नीड टू डू हार्ड वर्क. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट. एंड प्लस हार नहीं होती हमारे विटी का मिशन स्टेटमेंट भी है, और जो पोएम है वो भी हमने हमारी डायरी तक में प्रिंट कर रखी है. वी वॉन्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन सो दैट ही इज़ मोटिवेटेड, ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन हैंडलिंग द सिचुएशन. हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. सो वी नीड टू completely do our hard work. We need to concentrate where we are lacking, and we need to accept where we are wrong. सो आई थिंक अगर हमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हमने हार हुई है, तो उसको अगर हमने पॉजिटिवली लिया तो हम नेक्स्ट टाइम उसे जीत में कैसे बदल सकते हैं, विच वी विल कम टू नो. सो आई थिंक वी नीड टू हार्ड वर्क ईच एंड एवरी टाइम विद द पॉजिटिव एटीट्यूड. वही आपको आगे ले जाएगा. कभी कोई भी काम आप करें, नीयत एकदम साफ रहनी चाहिए. इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. आपका जो भी एम है, मिशन है, उसको एकदम क्लियरली आपको आगे बताना है. स्कूल इज़ अ टीम वर्क. अकेली मैं स्कूल नहीं चला सकती.
It's a complete package of principal, coordinators, teachers, housekeeping staff, drivers, cleaners, security, gardener, ये सब मिलकर एक स्कूल चलाते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं इन सब का हार्ड वर्क देखते हैं एंड दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट। इन सबको ट्रेन करना, पॉजिटिवली ट्रेन करना और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको ट्रांसपेरेंसी से उन तक इम्पार्ट करना, तो दैट gives the strength and the value among your staff members. And I think वही एक टीम बनती है, क्वालिटी आपको मिलती है। आपका विजन जब आप उनको इम्पार्ट करते हैं कि हमें इस क्वालिटी को मेंटेन करना है एंड दिस इज़ व्हाट एक्सपेक्टेशंस इज़ फ्रॉम यू। पेरेंट्स को भी वही एक्सपेक्टेशंस है, क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी इन ईच एंड एवरी एरेना। तो जब आप हमारा विटी प्रेमाइस भी देखेंगे तो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव गार्डनिंग से लेके सफाई, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, हमारे ड्राइवर्स, ड्रेसअप, बसेस, क्लासरूम्स, everything is up to mark and up to standard which we want our child to go through it. जितना एक्सपोजर हम हमारे बच्चों को, हमारी टीम को देंगे, द 100% इंक्रीज वो आगे अपने फ्यूचर में लगाएंगे। So we need to show them and give them the best which is the need of at present, and they will do their best, which we guarantee that all the VTNs are going to rock in the coming years. आज भी हमारे बच्चे कई जगह ITNs और ये इसमें हैं and they are doing their well, अपग्रेड अपने आप को उन्होंने अच्छे से किया है। So I am proud of it and I am proud of the being myself in this profession where lot many professions are increasing, they are launching, they are doing good startups, social काम वो लोग कर रहे हैं। Like I myself, I am associated with many social platforms like Rotary. I'm a member of Rotary from past many years. जीतो की patron member हूँ and there are many social, I'm a chairperson for Namokar Mahamantra Bank Charitable Trust, where we make Mahamantra written and the copies and all, and we celebrate that every year. Due to Corona this year, we were unable to do that function in December, but in the coming year, we are going to do it again. So from past 2002, I should say, we are in Udaipur and continuously each and every year we are doing this. So I think positive attitude and your consistency doing in the proper way, smiling, taking everything positively, accepting all the things, failure or positive success, everything we need to accept it. And we are trying our level best to give the society the best. Role model, I should say that first my father, he inspired me a lot from my childhood. उनको मैंने हमेशा हार्ड वर्क करते देखा है। वी आर फ्रॉम स्मॉल मीडियम फैमिली और पापा जॉब भी करते थे एंड आफ्टर जॉब आवर्स ही यूज्ड टू डू हिज ओन बिजनेस आल्सो वेयर माय मदर सपोर्टेड हिम अ लॉट एंड लेटर ऑन देन आई विल गिव माय क्रेडिट टू माय ब्रदर। तो ही इज विजनरी आई शुड से एंड आई सैल्यूट हिम अ लॉट एंड आई फॉलो हिम अ लॉट। व्हेनेवर आई फील सैड और समथिंग, his motivational words, he motivates me, he guides me, which makes me feel very comfortable. He's a good motivational speaker too by profession also. So I listen to him a lot. Whatever problem or difficulties we face, we discuss with him. And his vision, the way of explaining the things, his concepts are so clear that he motivates us and he helps us to do. And he's every time ready to open for the discussion. And Bhabi, his wife, she supports a lot, and the complete our school chain of schools are being handled by Dr. Vinay Jain and his wife, Dr. Raina Jain. And I'm really blessed to be his sister and sister-in-law. And Udaipur branch, I should say, it's a special example of sister concern. So I am blessed to have such family, loving family who helps me a lot and who never let me down in any field. They are always back in front of me that we are here to support you.
सो दे जस्ट वांट कि गो अहेड, हम तेरे साथ हैं. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रुक जा मैं करके देता हूँ. ही विल गाइड मी, ऐसे 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 करना है, गो एंड डू इट, आई एम देयर, कोई प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो. तो इसी कारण है कि हमने यूआईटी में लैंड वगैरह ली, डॉक्यूमेंटेशंस और ये सबसे लाइजनिंग करी. तो सबको जानना कैसे गवर्नमेंट वर्क होता है. So I think he motivates me a lot, and he is the only person or backbone behind me, I should say, who pushed me to come in this professional industry. And by grace of God, with my family support, husband supports, my mother-in-law's support, I'm able to do it at my best capacity. So I would say that I salute and I'm fond of my brother's vision, and I'm always with him. Education industry is the best industry, I should say. And जिसे भी इस फील्ड में आना है, I would only suggest them that they need to be passionate. They should first understand what is the requirement and the need of the current society. And then they should enter with full passion and zeal to work. Hard work is the only key to success, because nowadays स्कूलिंग इज़ नॉट कि एक कमरे में शुरू कर दिया और फिर जैसे जैसे हुआ एक एक कमरा ऐड किया एंड देन वी बिल्डिंग अ बिग स्कूल और समथिंग. फ्रॉम डे वन वी नीड टू शोकेस द थिंग, वी नीड टू शोकेस आवर विजन, वी नीड टू हैव द क्वालिटी ऑफ स्टाफ एंड द ट्रेनिंग स्टाफ फॉर दैट. Homemade curriculum, it should be there, or we need to have tie-up with any of the chain of schools for that, where we can get some spoon feeding ideas or curriculum from that. तो आपको सबसे पहले जो मैं चाहूँगी कि अपने पास जो क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंस एंड पैशन टू वर्क, उसके बारे में पूरा होमवर्क करके फिर आप उसमें घुसें. क्योंकि बच्चों के साथ जुड़े रहना एक बहुत ही प्यारा एहसास है और इस एहसास को जीना पड़ता है. उनको अपना परिवार की तरह आपको अपनाना है, बिकॉज एक 12 years का बॉन्ड होता है टू दैट फैमिली, टू दैट पेरेंट, टू दैट चाइल्ड, वेयर वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन देयर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, एंड वी मोल्ड देम, वी गाइड देम. तो इट्स अ साइकोलॉजी पार्ट भी इसमें आता है. आपको एक हम्बल नेचर आता है. वी कांट बी अ हिटलर रूल इन दिस फील्ड. पहले कभी हुआ करता होगा, बट नाउ डेज इट्स अ फैमिली, इट्स अ टीम, जहाँ पे सब तरह के बच्चे हैं, सब तरह के पेरेंट्स हैं, एंड वी आर वन. वी नीड टू मेक एवरीवन अ वन फैमिली. देन ओनली वी कैन ग्रो, देन ओनली वी कैन से दैट वी आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स, और हम आने वाली पीढ़ी को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. और बच्चों को सब फील्ड अच्छी होती है. सिर्फ आपको उसका पैशन और आपको जो कार्य करना है उसमें दिल से शिरकत करनी है. अगर आपने उसमें अपना दिल, दिमाग, सब कुछ लगाया है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिवली आना ही है. और अगर किसी कारणवश फेलियर्स भी हो जाते हैं तो देयर इज द फील्ड इज ओपन. हम दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं. हर फील्ड की रिक्वायरमेंट सेम है. अपना जो टैलेंट है, अपने अंदर जो हुनर है, जो अपना दिल कहता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, we need to enter into that. मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में कर सकती हूँ, इस तरीके से काम कर सकती हूँ. मैंने डे वन से हर काम किए हैं, काउंसलिंग से लेकर, रिसिप्ट काटने से लेकर, पेरेंट को बताने के पढ़ाना है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, सब किए हैं. लाइजनिंग करनी है, ज़मीन लेनी है तो उसके लिए जो भी पेपर वर्क करना है, एफिलिएशन के लिए जो भी पेपर वर्क करना है, कंप्यूटर्स आना चाहिए, टैली वर्क आपको समझना है. तो आपको हर चीज़ में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है और हर काम सीखते जाइए. और ऐसा सीखिए कि जैसे आपको कभी आता ही नहीं था, तो आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे. 100% आप अवॉइड तो नहीं कहूँगी, अगर हम एकदम कि हमें कुछ नहीं आता ऐसे करके आप अगर अपने गुरु से सीखेंगे तो यू विल बी एबल टू गेन सैंपल. तो एकदम अनजान बन के सीखिए और ऐसा सीखिए कि उसमें महारत ही हासिल हो जाए आपको. और थोड़ा करके आप एक दिन 100% सक्सेसफुल अपने फील्ड में बनेंगे ही बनेंगे. इसकी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ. इफ़ द पैशन एंड द राइट वर्क एंड द क्वालिटी वर्क इज़ देयर, आपने अगर किसी को चीट नहीं किया है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता. एंड आई बिलीव इन दैट. आई वुड से दैट आई वॉज नॉट born as a leader. Slowly and steadily, the experience, my professional life,
it automatically motivated me to train someone else. Because my work, my profession, it is certainly belong with the team. If I need to build a team, I need to train them with whatever vision I have. So automatically, I think it made me to become a leader. I'm not a leader, I won't say I'm a leader, but since I need to handle the team, I have to guide them. So I can say I'm guiding them. I'm not a leader. I'm just guiding them to get the best out of them. अगर मुझे वापस टाइम मशीन में बैक भेजा जाए तो आई थिंक आई वुड फर्स्ट लाइक टू स्टडी मोर. Since I got married very early, I was not able to complete my studies more, which I no doubt I did later on by doing some short courses. बट हाँ, मैंने पढ़ाई मैं और करना चाहूँगी, बट आना तो इसी फील्ड में ही नहीं चाहूँगी कि एजुकेशन फील्ड जो समय ने मेरे को यहाँ पे लेकर आया है. मेरा तो कोई पैशन नहीं था. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे को शुरू से ही एजुकेशन में आना था. नो, दैट वाज नॉट ट्रू. टाइम और समय, मेरे भाई ने विटी ब्रांड लॉन्च किया. आई वॉज फ्री एट दैट टाइम. ही टोल्ड मी टू डू इट एंड आई एंटर्ड इनटू इट. सो सब काम अपने आप होते गए इन माय लाइफ. And I never said no to anything. I always accepted it. Okay, there must be some other opportunity behind it. और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये टाइम ने मुझे यही सिखाया है. माई लाइफ आई हैड लर्न एवरीथिंग. नो मैटर 2 months का जो हॉलीडेज होता था ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम, वी यूज टू लर्न सम और अदर क्रिएटिव वर्क, चाहे वो मेहंदी हो, पेंटिंग हो, फाइन आर्ट्स हो, स्टडीज़ हो, लैंग्वेज स्पीकिंग हो. तो वी डिड एवरीथिंग. But whatever we did at that time, it was with passion, with full zeal, with perfection. And I think वो मुझे आज भी help करता है in my education, in my routine life, in my family, in my in-laws family. चाहे वो cooking से related हो, something creative से related हो, even with my friends, I love to share with them, I love to act accordingly. तो जो समय आपको अपॉर्चुनिटी देता जाए विदाउट सेइंग नो इट और बट ट्राई टू एक्सेप्ट इट एंड डू इट. मैं रोटरी में भी आए हम, बट एक्सेप्टेड द चैलेंजेस. हर चीज़ हमने जो भी पोस्ट मिली उसको जस्टिफाई किया. राइट नाउ आई एम एज अ असिस्टेंट गवर्नर एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड फॉर द सोशल नीड्स ऑल्सो. तो हर चीज़ करो, जो भी पोस्ट मिले उसे एक्सेप्ट करो, अपनी शिद्दत से उससे रिलेटेड अपने काम करो. तो आई थिंक समय आपको एक कुछ बनाने के लिए, कुछ देने के लिए आपको कोई राह दी है, तो उसको हमें नहीं पता आगे क्या होना है, बट अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है तो ज़रूर कुछ अच्छा होने के लिए आई है. सो लेट्स ट्राई टू डू इट एंड अचीव द बेस्ट. Presently, I am Assistant Governor for the Zone 15 for District 3054 Rotary International. In the Rotary field, Rotary is doing its best in the social work for the community in the 7 areas of focus areas, which is में basic literacy भी आता है, education and health, environment and many other things. तो हम सब मिलकर फंडिंग करते हैं and then we try to give the best to the needy. Like polio and polio, उसका मिशन भी रोटरी का था and 99% we are right now polio free. It's the best example of Rotary's hard work and dedication. It's teamwork. Rotary is also a system-based organization which I salute and I liked it. And the same way JITO, Jain International Trade Organization, it's also a system-based proper which is focused on Jainism, and they are doing their best for the Jain community. And I'm holding a post for Vice Chairman this year for the Ladies Wing also. So all these social communities, they are made in such a way and their system based is so strong that they make us learn teamwork. They make us feel humble how we need to react with the needy people and how we need to work with them. और हम सब अगर मिलके साथ रहेंगे तो कोई अमीर गरीब नहीं होगा. We will try to have the same level for everyone. Everyone should be happy. हम अगर धरती पे आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं.
So let's try to do the best which in our capacity which we can do it. जितना भी कर सके, हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जा सकती है. आपका अपना योगदान भी, श्रम भी उतना ही मायने रखता है. अगर आप वॉलंटरी भी अगर कहीं पे हेल्प करते हैं किसको भी, वो भी इक्विवेलेंट टू मनी है. हर चीज़ पैसों से ही नहीं कि पैसा देने वाले भी बहुत हैं तो काम करने वाले भी चाहिए. So it's a combination of everything which make all the social platform make us feel to work for the society, which make us feel that आज भी हम धरती पर ही हैं, ज़्यादा आसमान में ना उड़े. दूसरों का दर्द देख के लगता है कि नहीं, अगर हमें भी कोई दर्द मिला है तो इतनी बड़ी बात नहीं है. इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ओपन. सो सोशल उसके साथ ही मेरा रोटरी, जीतो, नमोकार महामंत्र बैंक, friend circles, and I'm very happy to be joining hands with all these institutions. Education, no doubt, it's very important, but education को आप सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से ही नहीं तोल सकते हो. Education start as soon as you are born. In fact, ये भी कहते हैं सब जन, हमारे पुरखों ने भी कहा है कि 9 months when you are in the mom's तो तभी भी आपका एजुकेशन शुरू हो जाता है. बट आपको एजुकेशन कहाँ से मिल रही है दैट डजेंट मैटर, बट आपने वो चीज़ कितनी इनकलकेट की है विद इन योर सेल्फ. आपको आपके कौन सी चीज़ आपको क्लिक करी है. लाइक अपन ने साइंटिस्ट को भी देखा है, एप्पल गिरा और उन्होंने क्या उसको सोच लिया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कैसे इन्वेंट हुआ है. विद लॉट्स ऑफ मेनी सच एग्जाम्पल्स, जो किसको कब क्या क्लिक कर जाए और वो क्या कमाल कर जाए, यू नेवर नो. So education, no doubt, it helps us. But उसके लिए बेस और आपको सपोर्ट जो आपकी फैमिली देती है, which is a base for you, जो आपको आगे आने के लिए, चलने के लिए मजबूत करती है. So education आपको चाहिए, कब तक चाहिए, किस एज तक चाहिए, it depends on your passion, what you want to achieve. कई एग्जाम्पल्स हैं जो एट द एज ऑफ 10 भी सबने बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, अच्छा बिजनेस सबने स्टार्टअप कर लिया है. और ये भी एग्जाम्पल है कि एट द एज ऑफ 60 जब भी है तभी भी वो फेम हासिल करते हैं. सो वी कांट जज इट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू थिंक कि नाउ आई वांट टू डू दिस इन दिस वे एंड विच विल मेक यू अ सक्सेस. I was born in Mumbai only और पढ़ाई कॉलेज सब मैंने मुंबई से ही किया. छोटी छोटी यादें ये हैं कि मेरे टाइम पे बिफोर 25 years ago तो उस समय लड़कियों को इतना जल्दी अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता था और मेरे मम्मी पापा भी उस चीज़ को पूरा करते थे. तो कभी भी मैं अकेली ट्रैवल नहीं करी बिफोर मैरिज. हमेशा मेरे साथ भाई, इवन स्कूल कॉलेज भी जाते थे तो हमारी बिल्डिंग से सभी बच्चे और हम फ्रेंड्स सब साथ जाया करते थे, साथ आया करते थे. तो देयर वाज ऑलवेज समवन अकम्पनिंग विद मी. तो उसमें ये याद था कि भाई इसको जाना है तो मैंने अकेली नहीं जाएगी, ये बोले हम सब जाएंगे. कभी भी अकेला मुझे नहीं छोड़ा. और अब आज का समय ऐसा है कि मैं अकेली भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ. तो समय कब आपको क्या सिखा जाए, जितना मैं पहले रिजर्व रहती थी आज मैं उतना ही फॉरवर्ड हूँ, उतना ही मैं सबके पास जाती हूँ अपने हिसाब से, अपने टाइम में इंटरव्यूज़ और उसके हिसाब से जाती हूँ, अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से. बट नाउ आई ट्रैवल अलोन. और एक टाइम था जब मैंने कभी अकेले स्कूल कॉलेज तक नहीं गई. किसी के यहाँ भी जाना होता था, ऑलवेज विथ माई कजन्स एंड ब्रदर्स, दे यूज्ड टू अकम्पनी मी. मेरा भाई हमेशा साथ रहता था, कजन साथ रहते थे एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. मस्ती भी खूब की, नो डाउट इन दैट. साइकिलिंग, बिल्डिंग में कोई भी फंक्शन होता था, फन एंड फेयर ऑर्गेनाइज करते थे तो दैट वाज कम्प्लीटली टीम और हम उसको ऑर्गेनाइज करते थे. तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है बच्चों को भी सिखाने के. हर एज ग्रुप के बच्चे ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं. तो हमारे से जो बड़े सीनियर्स होते थे वो हम लोग को बताते थे तुम लोगों का ये काम है, तुम सब ये करोगे. और जैसे ही 5 या 6 बजते थे सब नीचे खेलने के टाइम पे. और तो we used to enjoy a lot, but no doubt I was very reserved at that moment, but I tried to learn. भाई के लिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ें, उसको जीन्स वगैरह बहुत पसंद था, सब कलर्स की जीन्स होनी चाहिए उसके पास. तो छोटे छोटे पैसे बचाने पड़ते थे उसके लिए कि उसको ये गिफ्ट देना है इस बार, उसको ये चीज़ चाहिए. क्योंकि we belong to a very small medium family where we used to stay in a 1-room kitchen flat.
इन मुंबई गोरेगांव महेश नगर। वहाँ से सब काम खुद ने किया। मम्मी कटिंग करती थी, पापा उसको पूरा स्टिचिंग और ये करवा के और पूरा तोप के लेके जाया करते थे पैदल, कि मतलब ऑटो का पैसा थोड़ा सा बचे। आई यूज टू सी, तो लगता था, तो हम सब घर वाले लग जाते थे हेल्प करने को, पैकिंग करने को। एंड बाई सीइंग अस डूइंग ऑल दिस वर्क, तो मेरे जो नेबर्स थे इवन दे यूज टू ज्वाइन। तो रात में जो दिवाली की डिलीवरी और ये सब देनी होती थी, तो हम सबका एक गेट टुगेदर हो जाता था घर में ही, वेर यूज टू लाफ फन एंड यू ऑल टुगेदर डू द वर्क। तो ऐसी कई यादें हैं जब हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं होता था, और आज बहुत सारे लोग हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो समय समय की बात है और हर चीज़ छोटी छोटी याद रह जाती है। एट प्रेजेंट तो मेरे बेटे के साथ मेरा टाइम ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि मैं दिन भर उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ कई बार। तो जो भी दिन भर की उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके साथ पूछना क्या किया तूने आज, क्यों, बहुत मस्ती वाली बात, एक फ्रेंड्स वाली बात। अभी जैसे उसको मोबाइल, क्योंकि ऑनलाइन और ये हुआ है, मोबाइल हाथ में आ गए हैं बच्चों को, तो अब उनको सब गेम्स पसंद आने लगे हैं। तो फ्री फायर वो अभी खेलना सीखा है, विच मुझे इतना पसंद नहीं है, पर क्योंकि समय उनको उतना नहीं जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई है, तो फ्री फायर, तो उसने अपने दोस्तों से क्या सीखा, किसने क्या बोला, उसने किसको, तो आई कीप ऑन टॉकिंग विथ हिम अकॉर्डिंगली। उनके फ्रेंड से भी बातें हो जाती है कि कैसे, क्योंकि कई अननोन फ्रेंड्स हैं। अब आप किसी को जानते हो तो समझ में आता है, बट फ्री फायर और ऐसे कोई गेम्स में यू डोंट नो हु द अपोजिट पर्सन इज। फिर मैंने उनकी टीम बना के दी कि आप कजन्स में ही खेलोगे। तो मैनी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल किड्स आर ऑल्सो प्लेइंग, तो उनकी एक ग्रुप बन गया, टीम। तो आई फील समथिंग ठीक है, जब तक स्कूल प्रॉपर नहीं हो पाता है तो ये एक्टिविटी हो जाती है और बच्चों का ध्यान रखना भी हो जाता है। सेकेंडली आई लाइक टू कुक समथिंग क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाया, कुछ नया ट्राई किया, तो वो भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। एंड देन टॉकिंग टू माई स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, तो इसमें टाइम निकलता है। एंड आई लव टू टॉक टू एंड स्पीक टू देम। जो भी सीखा, बहुत ही परफेक्शन से सीखा, दिल से उसको सीखा। तो सब देखते थे कि आज मेरा बिफोर मैरिज मुझे मेरे पीयर में हर कोई मुझे पिंकी के नाम से जानता है। तो पिंकी ने आज क्या बनाया है, आज नया क्या खिला रही है। तो मेरा खाखरे, डोसा, स्वीट डिशेस में जलेबी, इवन घेवर, ऑल यूज टू लाइक अ लॉट। और मेरे पापा और भाई, इनको तो डोसा और खाखरे बहुत पसंद आते थे। तो जब ये लोग सब एक साथ बैठते थे तो आई यूज टू, मतलब बहुत सारा मेरे को बनाना पड़ता था, उनको इतना अच्छा लगता था। दे यूज टू वेट फॉर इट कि मैं एक एक करके बनाऊं, बट उनको खाना है अच्छे से। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था बना के नया नया खिलाना। और आज भी नई नई वेराइटीज़ या कुछ भी बनाना अच्छा लगता है। इवन मेरे इन-लॉज में भी कि ये हम लोग आ रहे हैं, तो बता नया क्या खिलाएगी, क्या बना रही है, स्टार्टर्स में क्या बना रही है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ता था। एंड आई थिंक आई डिड माई बेस्ट। और अभी भी कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। पेंटिंग नया क्या बनाया है, किसने कहाँ नया, ग्लास पेंटिंग में क्या बनाया है, अच्छा इसने कहाँ से सीखा है, इतनी सफाई से इतना सब कुछ, उसी के पास जाना है। तो मेरी टीचर भी बहुत खुश होती थी, जिनसे भी मैंने सीखा है, कि मेरे कारण मेरे एडमिशन्स बहुत हो जाते हैं, मेरा ब्रांड तू बन चुकी है, तेरे को देख के सब जन इंस्पायर होते हैं कि हाँ सीखना है तो इससे ही सीखना है। तो वो कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी सब चीज़ें याद आती है। तो मेरा सबसे यही कहना है, जो भी करो बहुत पैशन और दिल से करो, तो उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और लोग तारीफ करते हैं तो आप भी मोटिवेट होते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, हैविंग पेशेंस, हियरिंग। और आपकी भी मैं मानती हूँ, हम सबकी कोई ना कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं जो आप सबको बताना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म, शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड बेनिफिट द सोसाइटी। जाते जाते चंद लाइनें मेरे अपनों के लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। So once again, thank you friends for listening me.
and I wish you all the best in the life.